O strong forerunner, I have heard thy cry. One shall descend and break the iron law, change nature's doom by the lone spirit's power. A limitless mind that can contain the world, a sweet and violent heart of ardent calms, moved by the passions of the gods, shall come. All mights and greatnesses shall join in her. Beauty shall walk celestial on the earth. Delight shall sleep in the cloud net of her hair, and in her body, as on his homing tree, immortal love shall beat his glorious wings. A music of griefless things shall weave her charm. The harps of the perfect shall attune her voice. The streams of heaven shall murmur in her laugh. Her lips shall be the honeycombs of God. Her limbs his golden jars of ecstasy. Her breast the rapture flowers of paradise. She shall bear wisdom in her voiceless bosom. Strength shall be with her like a conqueror's sword, and from her eyes the Eternal's bliss shall gaze. A seed shall be sown in death's tremendous hour, a branch of heaven transplant to human soil. Nature shall overleap her mortal step. Fate shall be changed by an unchanging will. आदरणीय भौणी मैंने श्रद्धेय भाई मैंने प्रतिवर्ष परी चलित वर्ष नवेम्बर मासर तृतीय रविवार रे आमे श्री अरविंद लीगल यूनिटर वार्षिक उत्सव पालन करने जाऊँ। यह हम एकादशतम वार्षिक उत्सव। एटा को आम मैंने चेष्टा करूँ व्यापक करने, अर्थात माँ शिवेन्द्र दश कर्मधारा मध्य यह एक गुरुत्वपूर्ण कर्मधारा जो संपर्क रे जेतिकी सचेतनता आसवा कथा हुए तो सेतिकी सचेतनता आम आनीपारी नहूँ। तथापि यही वार्षिक उत्सव पालन माध्यम एवं यार जो सभ्य सभ्य मान अच्छा से घरे पाठचक्र एवं पाठचक्र वार्षिक उत्सव इत्यादि पालन करने माध्यम आम किछिटा सचेतनता सृष्टि करने चेष्टा करुँ। यह व्यतीत ओडिशार विभिन्न जिले में श्री अरविंद लीगल यूनिट मध्य फॉर्म होती। दश कर्मधारा भितर सी भी गोटे सक्रिय कर्मधारा भाया धीरे धीरे प्रकाश लाभ करुच्ची एवं कौन स्थान में तार कार्यक्रम आरंभ है। एक आईनगत सचेतनता सहित तार आध्यात्मिक दिग गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता होची। साधारण मनुष्यर निज जीवन रे स्वाभाविक स्वच्छंद भाव में निजे जदि जने बंचिया चाहे तार किछि नियम कानून संपर्क में सचेतनता रहा दरकार। जो नियम कानून आमर भारत वर्षर संविधान आमको मंजूर करचंती। ता बाद जेतेबेले आध्यात्मिक गति बा आध्यात्मिक धारा रे प्रगति होगापी आम आलोचना करूँ बा कथा हो, निश्चय तार एक भिन्न दिगरु आवश्यकता कथा चिंता करा। आध्यात्मिक कथा यदि कहा जाए यह आईन को आहुरी परिष्कृत करा जाए। आईन गोटे परिष्कृत अवस्था अच्छी
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଇନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଖାଲି ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସତ କହୁଛି, ସତ୍ୟର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହୁନି ଯେଉଁ ଆମେ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ମିଛ କହୁଥାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯଦି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଇନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାନୁନର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଆମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମର ନିଜର କେବଳ ଅଧିକାର ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଇନର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ବା ଆଇନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଇନର କେଉଁ ଦିଗ ଏବଂ ସେହି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିବ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ ମାତୃଭବନରେ। ତା'ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସେସନରେ, ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଡକ୍ଟର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୁଲୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥାଏ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ସେ ନିଜେ ଡାକ୍ତର, ମେଡ଼ିସିନର ପ୍ରଫେସର। ବୁଲୁ ଭାଇ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି କହିଲେ ମୁଁ ହେଲି ଡାକ୍ତର ଓ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଓକିଲ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ସମାଜ ଆସୁଛି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ସମାଜରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇ ଯାକର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଲୋଡ଼ା ହେବେନି କି ଓକିଲ ଲୋଡ଼ା ହେବେନି। ଅନ୍ୟ କେହି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଓ ଓକିଲ ପ୍ରଥମେ ରହିବେନି। କାରଣ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବନି, ଡାକ୍ତର ଲୋଡ଼ା ହେବେନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ଧାରାରୁ ଉଚ୍ଚ ଧାରାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ତେଣୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କଜିଆ ଫଜିଆ ହେବନି, ତେଣୁ ଓକିଲ ବି ରହିବେନି। ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ। ବହୁତ ହ୍ୟୁମର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ। ସତରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଉଥିଲା ପିଲାଦିନେ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କାହିଁ କରୁଛ? ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠଚକ୍ର ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରେ କ'ଣ ଅର୍ଥ? ମୋ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇନୁ, 7 ଦିନରେ ଘଣ୍ଟାଟା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ମାଡ଼ିଯିବ, ଏ 7 ଦିନର ଘଣ୍ଟାଟାଏ ମୋ ପାଇଁ 7 ଦିନ ହେବ। 7 × 24 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ମୋ ପାଇଁ ପାଠଚକ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ମା'କୁ ଯେମିତି ପଚରାହେଲା, ମା' ଗୋଟେ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମା' କହିଲେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଲ'ଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରା ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଲ'କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଲ'ର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଲ'କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ସହଜରେ ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବୁ, ଯେତେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହାର ଲୋଡ଼ା ହେବନି, ମଣିଷର ମନୋଭାବ ବଦଳିଯିବ, ମଣିଷର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସବୁ ବଦଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଅସଙ୍ଗତି ରହିବ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଗତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କି ସେଇ କଥାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହେଇନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଇନି।
शीघ्र नुह बहुत विलम्ब हो गला आम सचेतन हवा दरकार इट्स नेवर टू अर्ली यथेष्ट मान खूब शीघ्र हो जाए आहरी बहुत शीघ्र आगुरी हबार था से आम जो श्री अरविंद लीगल यूनिट तार एक्जिस्टेंसटा जदिओ एते व्यापक नुह एते थिक नुह माने एते सुस्थ सबल है नहीं एबे भी दुर्बल अच्छी कि से दुर्बल सबलटा शरीर देख कहीहबनी भितर भितर कौन जगह गोटे प्रस्तुति चली आम हुए तो ताकू बाहर कल्पना करूँ किंतु भविष्यत पाई निर्दिष्ट भाव भूमिका अच्छी से कथा अनुभव कर श्री अरविंद लीगल यूनिट मात्र 11 वर्षर अन्य सबू कर्मधारा सब बहुत पुराणा 10 कर्मधारा आरंभ बा बहुत आगुरी ए किसी कर्मधारा कार्य करुला से लीगल यूनिट बोली गोटे कनसेप्ट जो आरंभ है से अन्य 9टा जाक कनसेप्ट 9टा जाक कर्मधारा से कार्य आरंभ कर सारी एवं श्री अरविंद लीगल यूनिट अपेक्षाकृत कनिष्ठ बोली आम सचेतन कनिष्ठ बोली आम सचेतन एवं आम अन्य मानक सहायता पाई मध्य समस्ते चेष्टित अन्य मान साहाय्य आणबू आउ कर्मधारा मान जो मैंने अच्छा से सहित संपृक्त हबू आम सिंगल साइडेड हबुनि जे आम केवल लॉ एडवोकेट वकील ये मिसी करूँ ता नुह दिस इज ए ब्रांच ऑफ ओरिजिनल स्टडी सर्कल श्री अरविंद स्टडी सर्कल आंदोलन जो ओडिशा अच्छी तार गोटे ब्रांच गोटे शाखा ये तेणु पाठचक्र को ही आम भितर सामिल करूँ एवं पाठचक्र भितर पाठचक्र माध्यम जमी अधिक काम करूँ से चेष्टा करूँ आप मान समस्त को यही कार्यक्रम को मो आंतरिक श्रद्धा शुभेच्छा एवं कृतज्ञतार सह स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँ धन्यवाद। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। श्री अरविंद लीगल यूनिट 1920 बरणी परम प्रभु श्री अरविंद करुणामयी दिव्यजननी माँ अपार करुणारू श्री अरविंद लीगल यूनिट 10 कर्मधारार एक अंग रूपे प्राय 2006 मसीहा ठारू माँ श्री अरविंद कार्य नियोजन हो 2010 मसीहा ठारू राज्यस्तरीय वार्षिक सम्मिलन विभिन्न जिले में पालन कर आसुअछि। श्री माँ अनुगामी प्रणव कुमार भट्टाचार्य दादा प्रेरणा तथा बाणी हार्मोनी एट एनी कस्ट यथासंभव संगति यही उक्ति को पाथेय करी यही यूनिट यथासाध्य चेष्टित होई कार्य करुअछि। कार्यक्रम श्री अरविंद लीगल यूनिट 2010 मसीहा ठारू प्रत्येक वर्ष नवेम्बर मासरे राज्यस्तरीय वार्षिक सम्मिलन निरंतर भाव आयोजन करुछि। पाठचक्र संगठन तथा ओडिशार कार्य करुथिबा माँ अनुष्ठान शिक्षा केन्द्र आदि सहयोग अनेक जिला तथा कटक पुरी अनुगुलर आठमल्लिक मयूरभंज जिलार बारिपदा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा एवं जाजपुर जिला मानकरे वार्षिक सम्मेलन आयोजन करी आईनगत तथा आध्यात्मिक दिगरे कार्य करने संबंध में विशिष्ट वक्ता तथा मातृभक्त मानक द्वारा आलोचना करी माँ कार्य आउ एक पाद आगे अच्छी। एतद व्यतीत कटक जिला एवं पुरी जिले में विभिन्न मातृ अनुष्ठान मानकरे आईन सचेतनता शिविर आयोजन करी माँ अनुगत वक्ता मानक द्वारा आलोकपात करी उपदेशात्मक पदक्षेप नेउअछि। एतद व्यतीत श्री अरविंद लीगल यूनिट्र सभ्य माने निज निज गृह नियमित भाव में मासिक श्री अरविंद पाठचक्र आयोजन करी विभिन्न मातृभक्त मानक गहन में माँ श्री अरविंद पुस्तक पठन करी माँ जोगरे अनुप्राणित होगापी प्रचेषा जारी रखी अछंती। चलित वर्ष मुक्त सम्मिलन परिवर्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम एकादश वार्षिक सम्मिलन मातृभवन ठारे अनुष्ठित होउछि। श्री अरविंद लीगल यूनिट्र समस्त सभ्य तथा मातृभक्त और पाठचक्र सभ्य माने यूट्यूब मदर ओडिशा माध्यम अंशग्रहण करने अनुरोध। मातृभवनर मामू बाबुली भाई और अन्य भाई अपा मानकर सक्रिय सहयोग जोगु उक्त कार्यक्रम संभव होउछि। आम्भर निमंत्रित अतिथि तथा वक्ता माने असुविधा थाई मध्य आम अनुरोध रक्षा करी सम्मेलन को साफल्यमंडित करिथिबारु
अनुष्ठान तरफरु सेमानकु तथा श्रोता मानकु कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। आसंता वर्ष पई आपण मानकर सहयोग कामना करी रहुछि। करुणमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त भाई भौणी मान को मोर प्रणाम नमस्कार शुभेच्छा अभिनंदन वंदे मातरम। जो विषय संपर्क में आम आलोचना करवा सी हूँ ह्यूमन एस्पिरेशन एंड डिवाइन रेस्पॉन्स मनुष्यर अभिप्सा एवं भगवान प्रत्युत्तर ह्यूमन एस्पिरेशन एंड डिवाइन रेस्पॉन्स। आम समस्ते जानीचे जे जोटा को आम मातृ उपनिषद बोली कहू श्री अरविंदर माँ बही से माँ बहीर आरंभ कर श्री अरविंद जो महान और दुरूह कार्यटी आम मान साधनार लक्ष्य ताहा केवल दुईटी शक्तिर संजोग संपन्न हो पारे। गोटे है निम्नरु आवाहन करे जो स्थिर अप्रतिहत आस्पृहा एवं अन्यटी है ऊपर उत्तर दिए जो परम भागवती करुणा। जो विषय वस्तु आम आलोचना करने जाऊे ताकू गोटे लाइन में श्री अरविंद एवं माँ बहीर आरंभ से कहते जो महान एवं दुरूह कार्यटी आम मान साधनार लक्ष्य जो उद्देश्य आम जन्म होती आम ये जन्म नहींचु एवं जो उद्देश्य आम जीवन यापन करुचु केवल गोटे मात्र उद्देश्य से माँ बहीर अन्यत्र श्री अरविंद कहते मन रख केवल भागवत कर्म एवं भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दि जाए अन्य किसी आकांक्षा कर ना ताले या जदि उद्देश्य हुए एवं आमे केवल भागवत कर्म करने को आसीचे एवं से उद्देश्य आमको जीवन दि जाए ताहले से साधनार लक्ष्य होची से जो भागवती शक्ति को पूर्ण भाव में संपूर्ण भाव में अविकल भाव में अभिकृत भाव में एठी अभिव्यक्त कराइबा ताल सी हूँ महान एवं दुरूह कार्यटी सी केवल जोड़े जिनसर जोड़े शक्तिर संजोग संपन्न हुए। गोटे हूँ निम्नरु आवाहन करे जो स्थिर अप्रतिहत आस्पृहा तेणु आस्पृहा कहले आम बुझू एस्पिरेशन बा अभिप्सा अभि उपसर्गटी लगे इप्सा लगाई एक बृहत्तर इच्छा सबुटी जार को आम आस्पृहा कहीपर ना आम से विषय आलोचना करवा ग्राजुअली ताले स्थिर अप्रतिहत आस्पृहा दीटा एडजेक्टिव लगे से आस्पृहा पूर्व स्थिर अचंचल एवं अप्रतिहत अप्रतिहतर अर्थ हूँ अविरत निरंतर कन्स्टांट ताले या जदि हुए ताले जो ह्यूमन एस्पिरेशन कौटी ना कौटी निहाती भाव में गोटे घटवा पड़ो और तार उत्तर देवे सी एपर्यंत जहाँ भी होती ता द्वारा ही संभव है। अवश्य आम हुए तो सचेतन भाव में केते आस्पृहा करिचे न करिचे सेटा अलग कथा किंतु कौटी ना कौटी पृथ्वी आस्पृहा करछि एवं जारी फल सी आसचंती निवर्तित होइचंती इनवॉल्व होइचंती निश्चेतना भितर माँ थे कहते जे जो जहाँ को आम निश्चेतना बोली कहू इनकनसीएंट बोली कहू सेठी मध्य आस्पृहा अच्छी सेठी मध्य एस्पिरेशन अच्छी एवं सेठी एस्पिरेशन किए कर निजे डिवाइन कर गोटे प्रश्न पचराई माँ को जे निश्चेतना भितर डिवाइन ही करिसेंती आस्पृहा एवं परवर्ती काल में जो विवर्तन संगठित होती अथवा इनकनसीएंट कहले निश्चेतना जो कथा श्री अरविंद लेटर संजोग परिष्कार कर निश्चेतार अर्थ चेतनाहीनता नुहे बिल्कुल नुहे आम केवल बुझापी किसी शब्दर या इनकनसीएंट सबकनसीएंट बा नेसिएंस विभिन्न टर्म रे श्री अरविंद व्याख्या करने चेष्टा कर दीज वर्ड्स आर रिलेटिव ये जो शब्द गुड़िक प्रकृति में आपेक्षिक एमती कौन सी जिनस ना जो थे चेतना ही ना कारण जो निश्चेतना भितर से निजक निवर्तित कले से निश्चेतना भितर निश्चित भाव गोटे चेतना रही किंतु आमे बुझापी जो ना दि जाए आमे बुझापी किसी गोटे कहुए कारण ना प्रकृति में जो ना दि जाए मन पड़े रोमियो जूलिएट शेक्सपियर गोटे डायलॉग अच्छी जूलिएट व्हाट्स इन ए नेम दैट व्हिच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट ना रे कौन अच्छी आमे जहाँ को रोज बोली कहूँ आमे जहाँ को गोलाप बोली कहूँ
से गोलाप ता ना न होइकी जदि आउ कौन होता ताहले तार से मधुर स्मेलटा कौन पड़े जाती गोलाप को जदि आम हेमदस्ता कहते ताहले आज कहते जे हेमदस्ताटा केड़े सुंदर है तेणु ह्वाट्स इन नेम ना रे किछि नहीं प्रकृत निर्यास जिनस हूँ जे असल कथा हूँ से जो जिनिस बा वस्तु बा व्यक्ति तार भीतरटा कौन से कथा पछे आम आलोचना करवा कि बर्तमान से जो आस्पृहा ये हूँ गोटे बहुत बड़ जिनिस एवं प्रत्येक आस्पृहार उत्तर अच्छी जो डिवाइन रेस्पन्स कथा कहुच्छी जे तलू गोटे शक्ति आस्पृहा करिवो एवं उपरू तार उत्तर आसीबो ये जो आस्पृहा एवं उत्तर ये दुईटाकर संजोग ही केवल ये जो विराट कार्य माने संपन्न हो पारे आस्पृहा कौन बोली लेटर संजोग श्री अरविंद को पचरा जाइए श्री अरविंद तार एक्सप्लेनेशन दौरान इट इज द कॉल इन द बीइंग फॉर द डिवाइन और फॉर द हायर थिंग्स दैट बिलोंग टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस ये हूँ एक आह्वान सत्ता भितर जड़े कि आह्वान करिवो ये बास जो सत्ता भितर आह्वान फॉर द डिवाइन भगवान पे जो आह्वान और फॉर द हायर थिंग्स दैट बिलोंग टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस दिव्य चेतना रे थिबा जो उच्चतर जिनस गुड़ा को ताकू जितेबाला आम चाहिए सेटा हूँ आस्पृहा साधारण डिजायर या भितर आसबनी टू आस्पायर ऑलवेज मीन्स टू कॉल फॉर हायर थिंग्स ब्राकेट रे श्री अरविंद कहते जे आस्पृहार अर्थ हूँ एक उच्चतर जिनिसर अभिप्सा करवा उच्चतर जिनिस को चाहिए उच्चतर जिनिसर इच्छा करवा पुणी अन्यत्र अन्य जगह कहते आस्पिरेशन इज ए टर्निंग अपवर्ड ऑफ द इनर बीइंग with a call, yearning, prayer for the divine, for the truth, for the consciousness, peace, ananda, knowledge, descent of divine force or whatever else is the aim of one's endeavor. मनुष्यर जो प्रचेष्टा तार जो एम रोचे लक्ष्य रोचे या छड़ा अन्य जदि लक्ष्य सी आस्पृहा स्तर भितर जीवनी सी बिल्कुल आस्पृहा भितर जीवनी परिष्कार करी श्री अरविंद कहले जे ये आस्पिरेशन इज ए टर्निंग अपवर्ड ऊर्ध्व को जो आम उठी जावा बा ऊर्ध्व को गोटे आरोहण करा सेटा हूँ आस्पिरेशन कहार ना ऑफ द इनर बीइंग आम अंतर्गत सत्तार एक ऊर्ध्वारोहण हूँ अभिप्सा से केमती कर सेटा को ना गोटे आह्वान रे गोटे आकुति ता भीतर आसो गोटे प्रार्थना कहाँ ना से भगवान को सत्य पे चेतना पे शांति पाई आनंद पाई ज्ञान पाई बा दिव्य शक्तिर ये आगमन पाई बा यही संपर्क जहाँ ये जो जनकर प्रचेष्टार जहाँ किसी लक्ष्य अच्छी से प्रति इच्छा करवा से ताकू चाहिए एवं एक ऊर्ध्वारोहण को अंतर्गत सत्तार एक ऊर्ध्वारोहण को आम कह आस्पिरेशन या छड़ा आम जदि चाहिए आउ कि अन्य किसी सी आस्पृहा भितर बिल्कुल जीवनी आस्पृहार गोटे निर्दिष्ट स्तर अच्छी बहुत समय माँ को प्रश्न पचराई जे प्रेयर आउ आस्पिरेशन भितर कौन पार्थक्य अच्छी माँ कहती हाँ अच्छी गोटे डिजायर बा आस्पिरेशन भितर कौन पार्थक्य अच्छी कि आम जो आम्बिशन कहूँ बेले बेले भारी लौकिक भाव में गोटे फर्माली आम दुईटा को एकाठी करदू आम जब डिक्शनरी देखा आस्पिरेशन अर्थ कौन से चाहिए आस्पिरेशन कथा भी कहुई डिजायर बोली कहुई आम कहूँ बेले बेले जे सब पॉलिटिकल स्पीच से दिखती राजनीतिक भाषण में जे आम गरीब मानकर होप्स एंड आस्पिरेशंस फिलअप करने आम फुलफिल करने होप्स एंड आस्पिरेशंस तेणु कौटि ना कौटि आस्पिरेशन कथा कहले गोटे डिजायर कथा उठी जाए किंतु डिजायर गोटे अलग लेवल कथा से गोटे प्राण स्तर कथा अवश्य डिजायर जदि उच्चतर हो पारे सी हुए तो आस्पृहार रूप नहीं पारे किंतु आज सच आम जो डिजायर टर्मटा कहूँ इच्छा आकांक्षा आमर लिप्सा ये एक निम्न स्तर कथा डिजायर जीवन आस्पिरेशन स्तर श्री अरविंद आस्पिरेशन एवं आम्बिशन ता भीतर गोटे डिफरेन्शिएट कर आस्पिरेशन को आम्बिशन बोली कहबानी आम्बिशन कहला आम उच्चाकांक्षा आम कौ पोस्ट को जीवु कौटिक जीवु कौन करूँ इत्यादि इत्यादि बहुत जिनस अच्छी सी हूँ आम्बिशन किंतु आस्पिरेशन कहले एक बृहत्तर जिनिस एवं भगवत चिंता बा भगवान संपर्क जेकोसी जिनिस
ताकू केवल आस्पृह आम कहीपर कारण ये जीवन माने कि ना आम जदि श्री अरविंद को विश्वास करूँ श्री अरविंद दर्शन उपर आमर आस्था अच्छी विश्वास अच्छी ताले आमको मानवा पड़ो ये जीवन अर्थ भगवान को छाड़देले ये जीवन अर्थ कि ना जदि तांको आम अभिव्यक्त करिवार एक डिसीजन सिद्धांत निष्पत्ति नहीं कि आम आसीचे ताहले आम आस्पृहा करने को पड़ो एपर्यंत पृथ्वी रे जो मैंने भगवान उत्तर पाई प्रत्युत्तर पाई आस्पृहा रही एवं से आस्पृहार प्रत्युत्तर मिली प्रत्येक आस्पृहार प्रत्युत्तर मिली सबुठ बड़ कथा है जे आम आस्पृहा केते सिनसीयर अवश्य आस्पृहा कथा कहले से अन्य सब जिन गुड़ाक आ प्रयोजन ना आस्पृहा इटसेल्फ इज सिनसीयर माँ को अनेक जिन पचरा जाइए से कहते गोटे प्रश्नर उत्तर में आई रिमेम्बर दैट वन्स वी स्पोक ऑफ करेज आज वन ऑफ द परफेक्शंस माँ कहते मोर मन पड़ुची आम आउ थे कथबार्ता होते गोटे साहसर कथा विषय आम साहस संपर्क में आम आलोचना करुले एवं साहस हूँ वन ऑफ द परफेक्शंस जिते गुड़े पूर्णता अच्छी से पूर्णता भितर गोटे पूर्णता हूँ साहस माँ कहते बट दिस करेज मीन्स हैविंग ए टेस्ट फॉर द सुप्रीम एडवेंचर एक चरम दुस्साहसर स्वाद हूँ साहस चरम दुस्साहस सुप्रीम एडवेंचर दिस बट दिस करेज मीन्स हैविंग ए टेस्ट फॉर द सुप्रीम एडवेंचर चरम दुस्साहसर जो स्वाद सेटा जदि पाखे अच्छी ताकू आम कहवा साहस बोली तापर माँ पुणी एक्सप्लेन कर एंड दिस टेस्ट फॉर सुप्रीम एडवेंचर इज एस्पिरेशन दिस टेस्ट फॉर सुप्रीम एडवेंचर ये जो चरम दुस्साहस तार जो स्वाद सेटा हूँ एस्पिरेशन सी हूँ आस्पृहा तमाने आस्पृहा एक चरम दुस्साहसर स्वाद an aspiration which takes hold of you completely and flings you without calculation and without reserve and without a possibility of withdrawal into the great adventure of the divine discovery, the great adventure of the divine meeting, the yet greater advantage of the divine realization. You throw yourself into the adventure without looking back and without asking for a single minute what's going to happen. माँ कहते ये जो टेस्ट फॉर एडवेंचर जहाँ को आम एस्पिरेशन बोली कहूँ ये हूँ एमती एक एस्पिरेशन जोटा कि तुम संपूर्ण रूप से कब्जा करनी एवं तुमको गोटे फोपाड़ी दिए से कैलकुलेशन कर आवश्यकता ना आज कौन अच्छी काली कौन हम अतीत कौन थी मुझे बर्तमान कौटी अच्छी कौ पर्यंत मुझे ये दरकार नहीं कैलकुलेशन दरकार नहीं एवं विदाउट रिजर्व किसी ही गोटे रिजर्व रखी हेनी एंड विदाउट ए पॉसिबिलिटी किसी संभावना आशा करा विदाउट ए पॉसिबिलिटी ऑफ विथड्रॉल निजको प्रत्याहार कर नबार गोटे संभावना भी सेठी नथिबो इनटू द ग्रेट एडवेंचर ऑफ द डिवाइन डिस्कवरी से भगवान को आविष्कार करिवार जो गोटे ग्रेट एडवेंचर से दिगरे आमे जीवा द ग्रेट एडवेंचर ऑफ द डिवाइन मीटिंग तांका सहित मिसिबा पई जदि ताकू एडवेंचर बोली कहा जाए से भी आम प्रविष्ट हवा एवं द येट ग्रेटर एडवांटेज ऑफ द डिवाइन रियलाइजेशन एवं से जो दिव्य उपलब्धि तार एडवांटेज आम पाइपर जदि आम ये जो ग्रेट एडवेंचर टेस्ट को नहीं पार जहाँ को आम एस्पिरेशन बोली कहचे यू थ्रो योर सेल्फ इनटू द एडवेंचर विदाउट लुकिंग बैक पछक फेरवार आवश्यकता ना आम सीधा सड़क डेलु से भितर जदि आम एस्पिरेशन अच्छी माने से जो एस्पिरेशन जो अर्थ हूँ एक दृढ़ इच्छा एक उच्चतर जिनस दृढ़ एवं बलवत्तर इच्छा से जदि इच्छाटी रही आम भितर एवं से इच्छा तार कार्य करने को आरंभ करुच्ची पछक चाहवर आवश्यकता नहीं देयर इज नो रीजन टू लुक बैक एंड विदाउट आस्किंग फॉर ए सिंगल मिनिट व्हाट्स गोइंग टू हैपन गोटे मिनिट में भी आमको पचार आवश्यकता नहीं जे कौन घटवाक जाऊँ यही हूँ एस्पिरेशन जड़े जदि एडवेंचरस काना ये पथ हूँ दुस्साहसिक पथर आम समस्त हूँ अभियात्री जदि ताहा ही लक्ष्य हुए एवं ताहा ही आम जीवन लक्ष्य हुए ताहले सेठी जदि एस्पिरेशन दृढ़ अच्छी ताले अन्य कौन सी जिनिस प्रति
ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ ଥିଲା, ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଲାନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ୍ପିରେସନ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସାଇକିକ୍। ସାଇକିକ୍ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯେକୌଣସି ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଯାହା ଅଭିପ୍ସାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆମର ସାଇକିକ୍। ତେଣୁ ସାଇକିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ପାୟାର କରୁଛି ବା ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରେସନ୍ଟା ସାଇକିକ୍ରୁ ଉଠୁଛି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରୁ ଉଠୁଛି, ସିଏ ଅବିମିଶ୍ର। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆସ୍ପୃହା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେୟାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲେସନ୍। କିଛି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଧରିକି ଆମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରେୟାର କରିପାରେ, ଆମର ଶରୀର ପ୍ରେୟାର କରିପାରେ, ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୟାର କରିପାରେ, ସାଇକିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୟାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ଆମର ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ନେଇକରି ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରୁ, କିଛି କହୁ। ଏବଂ ପ୍ରେୟାରର ବହୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ କିଛି ଚାହୁଁଛୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରୁ, ବା କିଛି ଚାହିଁଛୁ ପାଇଗଲୁ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୟାର କରୁ, ବା ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେଲୁ, ଆମର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ପିରେସନ୍ କଥା କହିଲେ ସେଠି ନୋ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ନେସେସରୀ, କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିନା ଶବ୍ଦରେ ସେ ଆସ୍ପୃହା ଯିବ, ଉଠି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେୟାର କହିଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, କାରଣ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର, ଏକ ଫର୍ମୁଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେ ଦଶରତ୍ନାକର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲକୁଲ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ରାମ ନାମ କହ ବୋଲି, ସେ ରାମ କହିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଲା, କୌଣସି ଏକ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏକ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ରାମ ନାମ ସେ ଜପି ପାରିଲା ନାହିଁ, କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଆମର ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ କାହାଣୀରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀ ଆମର ପୁରାଣର ଏସବୁ ଏକ 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 ସଂକେତ, ଏସବୁ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ, ଏକ ପ୍ରତୀକକୁ ବହନ କରି ଚାଲିଛି। ତାର ସେ ଯେହେତୁ କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ମରା କହିବାକୁ କୁହାଗଲା। ତୁ ମରା ମରା କହୁ କହୁ ସେ ରାମ ରାମ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ଗୋଟେ କିଛି ଶବ୍ଦର ସମାହାର କରାଯାଏ ପ୍ରେୟାରରେ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରେୟାର ଏବଂ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ଆସ୍ପୃହା ସେଠି ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ମିଶିବେ। କାହିଁକିନା ଉଣାଅଧିକେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମନା ବାସନା ଜନିତ ପ୍ରେୟାର ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଏବଂ ପ୍ରେୟାର ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳାଇଯାଏ, ଏକ ଅଲଗା ଲେବୁଲକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ଏକ ଉଚ୍ଚତର କାମନା ବାସନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚତର କାମନା ବାସନା କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ସା ବା ଆସ୍ପୃହା। ତେଣୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଅଭିପ୍ସା ବା ଆସ୍ପୃହା ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ପ୍ରେୟାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ସେ ଅଭିପ୍ସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆସ୍ପୃହାର ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ସାଇକିକ୍। ଆମର ସାଇକିକ୍ କରେ ଆସ୍ପୃହା, ମା ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ପୃହା କଥା ଉଠିଲା ବା ଉଠିବ, ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ବା କିଛି ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେଠି ସେ ସେମିତି ଉଠି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେୟାର ଏବଂ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ବା ଆସ୍ପୃହା ଦୁହେଁ ମିଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗୁଡ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ସମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍, you can be sure that it will not be granted. ଯଦି ତା ଭିତରେ ଦାବି ରହିଲା, ସିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଯିବନି। କାରଣ ଆସ୍ପୃହା ଭିତରେ ଦାବି ରହିଲା ମାନେ ସେଠି ଡିଜାୟାର ଆସିଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଯେ କାମନା ବାସନା ଆସିଗଲା। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆସ୍ପାୟାର କରୁଛି ଗୋଟେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଟର ସଂଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍। It is not aspiration. To want to be a superman is a mistake. ये गोटे भूल। सुपरमैन हवा पे इच्छा करिबा गोटे होची भूल। It only swells the ego. से ego को आउट फुले दी। आम भीतर जो अहंग अच्छी ताकू से टिके फुले दी। One can aspire for the divine to bring about the supramental transformation. जने भगवान को aspire करिवो, भगवान प्रति आस्पृहा करिवो सी कहीं ना टू ब्रिंग अबाउट द सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हम अतिमानसिक रूपांतर हम, अतिमानस रूपांतर घटब, सी भगवान ही करेंगे। बट दैट आल्सो शुड नॉट बी डन टिल द बीइंग हैज बिकम साइकिक एंड स्पिरिचुअलाइज्ड।
by the descent of the mother's peace, force, light and purity. किंतु सेटा भी संभव हम नहीं बा करवा कथा नुहे जेपर्यंत सत्ता ता भितरे गोटे साइकिक स्तर को बा स्पिरिचुअलाइज्ड आध्यात्मिक स्तर को न जाए एवं एटा केमती संभव हम बाय द डिसेंट ऑफ मदर्स पीस, फोर्स, लाइट एंड प्यूरिटी. मांकर शांति, शक्ति, आलोक एवं आनंद अवतरण कला परे जड़े गोटे साइकिक स्तर को आसो एवं से से आस्पृहा कर कहीं माँ कहते आस्पृहार केन्द्र हूँ साइकिक, चैत्य सत्ता हूँ आस्पृहार केन्द्र से उठो आस्पिरेसन. तेणु जने जनकर भितर जदि साइकिसाइजेसन बा स्पिरिचुअलाइजेसन भली अवस्था न आसी सेठू आस्पृहा आसबनी. हुए तो किसी जिनस उठिपे सेठू डिजायर उठिपे सेठू एक प्रेयर उठिपे किंतु आस्पृहा कहले जहाँ सी से क्षेत्र आसबनी. तेणु श्रीराम कहते जे जो ऑब्जेक्ट ऑफ एस्पिरेशन आमर कौन हवा उचित, द एस्पिरेशन शुड बी फॉर द फुल डिसेंट ऑफ द ट्रुथ. जहाँ किसी उच्चतर जहाँ किसी उच्चतम मध्य सत्य चेतना बा भगवान से सब उच्चतर जिनिस शुड बी फॉर द फुल डिसेंट ऑफ द ट्रुथ. सत्यर संपूर्ण अवतरण पाई एंड द विक्ट्री ओवर फॉल्सहुड इन द वर्ल्ड. ये जो मिथ्या उपरे पृथ्वी रे विजय से आस्पृहा करा जीवो. आउ आस्पृहा करा जीवो नहीं. द एस्पिरेशन श्रीराम अन्य जगह भी कहते द एस्पिरेशन फॉर द सुपरमेंटल वुड बी प्रीमैच्योर. जमती से कहले सुपरमैन हवाई इच्छा करवा हूँ गोटे मिस्टेक. ये भी कहते एस्पिरेशन फॉर द सुपरमेंटल वुड बी प्रीमैच्योर. ये गोटे अपरिपक्व मनर कथा. सुपरमेंटल आम ताप आस्पृहा करवा. व्हाट यू हैव टू एस्पायर फॉर इज फॉर द साइकिक चेंज एंड द स्पिरिचुअल चेंज ऑफ द होल बीइंग. समग्र सत्तार एक चैत्यकरण बा आध्यात्मिकरण यहीटा आम एस्पायर करवा. व्हिच इज द नेसेसरी कंडीशन बिफोर वन कैन इवन थिंक ऑफ द सुपरमेंटल. सुपरमेंटल कथा चिंता करने पूर्व ये हूँ प्रथम शर्त, प्रथम कंडीशन जे आम भर गोटे साइकिसाइजेसन आसो बा स्पिरिचुअलाइजेसन आसो तापर आम सुपरमेंटल कथा चिंता करवा. आ मु आस्पायर कर सुपरमेंटल दैट डजंट मीन एनीथिंग. तेणु आमे आम जो आस्पृहा कथा जिते उठिबो से आस्पृहा आम भर गोटे रूप नहीं सी क्या प्रति आस्पृहा करने को पड़ो सी निजे तार से निर्धारण करिवो. आस्पृहा आम सिलेक्ट कर किसी कारण ना कहीं आस्पृहा कला भाया जो स्तर आम भर आसीज बोधे आमको प्रश्न करार आवश्यकता पड़ोनी बा से भली बारंबार जमी माँ को ये गोटे प्रश्न करा एंथेसिस ऑफ जोगर गोटे लाइन लिखिं ए साइकिक फायर विदिन मस्ट बी लिट इनटू व्हिच ऑल इज थ्रोन with the divine name upon it. A psychic fire within must be lit into which all is thrown with the divine name upon it. गोटे चैत्यर अग्नि आम भितर ताको आलोकित करिया पड़िबो एवं जा भितरु सबु जिनिस ताको फोपाड़ देवा पड़िबो से निया भितरु with the divine name upon it. तापर भगवान का ना थिबो एवं से सब चैत्यर अग्नि भितर को निक्षेप करिया पड़िबो. एटा सिंथेसिस ऑफ जोगर स्वयं कहिछन. क्वेश्चन प्रश्न है माँ को जे हाउ टू लाइट द साइकिक फायर. ये जो साइकिक फायर चैत्यर अग्नि केमिति याकू से आलोक को जलैया पड़ो. माँ गोटे शब्द कहले बाय एस्पिरेशन, बाय एस्पिरेशन. आउ नथिंग कैन लाइट द फायर. केवल चैत्यर अग्नि की बा चैत्य अग्नि संजोग करने को पड़े बा चैत्यर निया को जलय रखा हेले गोटे हूँ दरकार सी हूँ एस्पिरेशन बा आस्पृहा. माँ गोटे जगह कहते जे देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस ऑलवेज बिटवीन ए काइंड ऑफ मेंटल क्यूरियोसिटी व्हिच प्लेज विथ वर्ड्स एंड आइडियाज एंड ए ट्रू एस्पिरेशन ऑफ द बीइंग व्हिच मीन्स दैट ट्रूली रियली इट इज दैट व्हिच काउंट्स एसेंशियली एंड नथिंग एल्स. दैट एस्पिरेशन, दैट इनर विल because of which nothing has any value except that realization. Nothing counts except that. There is no other reasons for existence, for living than that. ताले हम जब केवल तांकु चाहूचे तांकु छाड़ीदेले आमर ये जीवन माने किछि नाही. सी आमर परम एवं चरम आवश्यकता. ताहले सेथिपई आस्पायर करबा पड़ियो.
जदि आमर लक्ष्य निर्दिष्ट हो गला जे तांकू छाड़िले आमर आउ अन्य किछि नाही बा अन्य किछि लक्ष्य नाही अन्य किछि साध्य नाही अन्य किछि आमर जीवन धारणर उपाय किछि नाही जदि तांकू आम चाहूजे ताले आस्पायर करिबा एवं केवल आस्पिरेसन ही सेटा करबा संभव हो कना आम भितरे जदि भगवान को सर्वांतकरण रे आम चाहूचु बा भगवान को आम पाइबा पई आम भितर गोटे व्याकुलता सृष्टि होउची से व्याकुलता ऑटोमेटिकली एक आस्पिरेसन अभिप्सार रूप नहीं से माँ कहते जे चैत्यर जो अग्नि जलवा हेले जोटा श्रीराम कहले जे गोटे अग्नि जल रखा पड़ो ता भर को आउ सब किसी निक्षेप करा पड़ो माँ कहते सेटा केवल आस्पिरेसन द्वारा संभव हो पार आम भितर चैत्यर अग्नि जल रखापी जो जिनसटी निहाती आवश्यक जो जिनसटी सर्वादौ आवश्यक सेटा हूँ आम अभिप्सा ताले ये अभिप्सा प्रकृत में माँ बही अति सुंदर वर्णना कर श्री अरविंद ये अभिप्सा कौन हवा उचित केमिति हवा उचित आम समस्ते पढ़ीचे अभिप्सा हवा उचित सदा जाग्रत अविराम और अविच्छिन्न यह सकाशे प्रयोजन है मनर दृढ़ संकल्प हृदयर अन्वेषण प्राणसत्तार सम्मति और दैहिक चेतना और प्रकृति को उन्मुक्त और नमनीय करी गढ़िवा निमित्त दृढ़ संकल्प ताहले आस्पिरेसन जो रहिबो सी सदा जाग्रत शोइबनी केतबे अविराम अविच्छिन्न माने जोटा अप्रतिहत बोले प्रथम कही से निरंतर सेटा चली रहिबो एवं या आवश्यक होउची मनर दृढ़ संकल्प हृदयर अन्वेषण हृदय चाहिए प्राणसत्तार सम्मति क्या बहुत समय जो कार्यटी कराहब ताको प्राण ही कर तेणु प्राणसत्तार सम्मति आ दैहिक चेतना और प्रकृति को उन्मुक्त और नमनीय करी गढ़िवा निमित्त दृढ़ संकल्प ये हूँ अभिप्सा ताहले जो प्रत्येक जिनिस जितेबाला आम भर अभिप्सा सृष्टि हो एवं तार जो प्रत्युत्तर मिल सी आम चिंतार लाइन में हेनी से प्रत्युत्तर आम जमी भावुचे एमती एमती हवा उचित एमती एमती हवा दरकार बहुत समय आमर से जो कामना बासना आसिक ठूल हो जाती सी सब जिन को निजे कंट्रोल करने चेष्टा करती से गोटे कहानी मन पड़े थरे जड़े युवक भारी मन दुखर बसते गोटे सांग देखाला कहीं मन दुख बसचु से कहला नाई 3 सप्ताह तले मोर जड़े रिलेटेड अंकल से चलीगले आ सी मो प्राय $20,000 मोप छाड़ी जाइए ये पचारा तेरे दुख कर कौन अच्छे तू तो $20,000 पाइलु ना नहीं तापर सप्ताह आउ जड़े सेमती जड़े अंट चलीगले जड़े आंटी चलीगले सी गोटे $30,000 छाड़ी जाइए लोक कहला मु आश्चर्य होची तुम दुख कौन पे तोर से $20,000 पाइलु एवं $30,000 पाइलु ना गत सप्ताह जड़े मोर से जेजबापा हे सी चलीगले सी गोटे $40,000 मो छाड़ी जाइए ना 40, 30, 20, $90,000 तू पाइलुनी तार तो दुख कौन ना ये सप्ताह कहीं मलेनी बा मत कहीं छाड़ी जाए ना तेणु आम अनेक समय आस्पुरा जदि या कहवा जे ए सप्ताह जड़े किए मरी था सी आम मो $50,000 छाड़ी जाता सी केवे आशा कर नाला एत जिनस पाइब बोली अथच थे पाइला 20,000 आउ थे पाइला 30,000 आउ थे पाइला 40,000 स्टिल हिज अनहापी जे सप्ताह कहीं जाना कि मत कहीं देना ताकू आस्पृहा करा बिल्कुल कहजनी ताकू आस्पृहा कहना ये आस्पृहा जो जमती आम बुक 1 कैंटो 2 रे सावित्री रे फास्ट लाइन ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बर्थ ये जो डिजायर शब्दटा यूज कर श्री अरविंद से यूज कर डिजायर हूँ आस्पिरेसन ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बर्थ हर माने सावित्री गोटे पृथ्वी चाहिए गोटे पृथ्वी आस्पृहा करिछि एवं तार प्रत्युत्तर आश्चर्य सावित्री ताले जो आस्पृहा करवा एवं डिवाइन रेस्पॉन्स एमती हुए ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बर्थ तांकर जो से मनीषटी हो जन्म होती सावित्री ये पृथ्वी आस्पृहा कर पृथ्वीर आस्पृहार प्रत्युत्तर रूपे से आसचंदी एवं निर्दिष्ट काम करने गोटे मिशन नहीं से आसचंदी
लाइफ डिवाइन श्री अरविंदर गोटे मुक्ति अच्छी से संपर्क में जे इन द स्पिरिचुअल ऑर्डर ऑफ थिंग्स द हायर वी प्रोजेक्ट आवर व्यू and our aspiration, the greater the truth that seeks to descend upon us, because it is already there within us and calls for its release from the covering that conceals it in manifested nature. जदि जिनसर एक आध्यात्मिक श्रृंखला थाए अच्छी भी प्रत्येक जिनसर एक आध्यात्मिक श्रृंखला अच्छी जहाँ जहाँ जिन आम चारि पाखे घटुची जमी घटुची यार एक आध्यात्मिक गोटे स्पिरिचुअल ऑर्डर अच्छी आध्यात्मिक श्रृंखला अच्छी ताहले आमे जेतिक उच्च को आमर दृष्टि एवं आमर अभिप्सा को आमे नहीं जाई परिबा सेही अनुसार सत्य जोटा कि एठी अवतरण करिया पई अपेक्षा करिकिर अछि कारण से सत्य आम भितर अच्छी आम समस्त भितर अच्छी एवं and calls for its release from the covering that conceals it in manifested nature. ये जो प्रकृति भितर अभिव्यक्त प्रकृति भितर सत्यटा कौटना कौट गोटे आवृत होकर रही अच्छी सत्य या भितर भी अच्छी किंतु सही सत्य को आवाहन करने से सत्य को ये प्रकाशित करने दरकार कौन ना आमर भ्यूज आमर दृष्टिभंगी एवं आमर अभिप्सा ये जिते उच्चतर को जीव सेते यहाँ संभव हो पार सेमती संभव हो पार आमे अनेक समय कहूचे जे मु भगवान को आस्पृहा करुच्ची भगवान को आस्पृहा करुच्ची मु कहूची अथच कौथि आस्पृहा करुच्ची ना मोर कौन निर्दिष्ट अच्छी जिनिस मोर किसी काम अच्छी ये पार्थिव प्रकृति भितर बा ये जगत भितर किसी चाहूँगी मोर मटेरियल बेनिफिट्स किसी मटेरियल बा किसी पार्थिव लाभ से चाहूँगी भगवान को आस्पायर कर सेमती से माने कि ना पुणी आउ थे से असुविधा कथा से पुणी गोटे गप मन पड़े से जड़े ऋषि आसते से युवक जड़े चले जा ऋषि पाक पहुँचले कहले गोटे मत गोटे कथा कहतु जे भगवान पाखु जीवार गोटे सर्टकट रास्ता मत बतैले से ऋषि भी भारी व्यस्त हो पड़े कहले नाई इमती तो किसी ना सर्टकट रास्ता कौन तुम साधना तुम प्रार्थना तुम आंतरिकता यारी उपरे भगवान को तुम्हें केते दूर पाइब सेटा निर्भर करे आ सर्टकट हुए कौन ना ना मत गोटे बता से नछोड़ बंधा से युवक छाड़े सेठू ऋषि अगत्या किसी उपाय न पाई कहले तुम गोटे कथा कर तुम सतरे आग्रही भगवान पाक जाए ना पूरा जितर सन्देह अच्छे ना तुम ठीक अच्छे तुम शालाग्राम देख ना आज्ञा देखी शालाग्राम ना तुम गोटे कथा कर आखि बंद कर शालाग्राम कर चारोटी बाहुर कल्पना कर एवं ध्यानस्थ हो तो पाइजी भगवान को ना चेष्टा कर से भद्र माने से युवक कि समय पर आखि बंद कले एवं कौन सब भाविले कि समय पर देखागला पाटी खाली लाड़ गड़ुची ऋषि पचारे बाबू ये लाड़ कौन गड़ुची यू हैव स्टार्टेड सलाइवेटिंग ना नहीं कौन कि आपड़ जो कहले शालाग्राम चारोटी गोड़र कल्पना कली मु आखि बंद के भाबू भाबू मोर कंकड़ा कथा मन पड़ा एवं जेहेतु से कंकड़ा तरकारी आज घरे होता तार स्वाद आस्वादन करी मोर पाटू लाड़ गड़िया को आरंभ है ऋषि कहले सी तुम्हें भगवान को बिल्कुल चाहूना हो तुम्हें भावुच तुम भगवान पाक जावाक चाहूँगी भगवान को आस्पृहा करुच्ची इथे आस्पृहार क्षणमात्र बिल्कुल लेस मात्र इथे चिन्ह ही ना तेणु अतएव आमे जो आस्पृहा सहित अन्य कौन सी जिनस को मिक्स करवा ना कौन सी जिनस को मिसेवा ना आस्पृहा पूरा निरोला एवं सी केवल आस्पृहार पदवाच्य जितेबले आमे केवल भगवान बा भगवान को संपर्क से सत्य चेतना आनंद प्रशांत प्रसारता प्रशांति इत्यादि इत्यादि ताकू छाड़ी आउ जहाँ चाहिए से आस्पृहा लिस्ट रे बिल्कुल जीव ना तेणु जितेबले आमर आस्पृहा से दिग को गति कर से भाई अवस्था आमर प्राप्त हम ताले प्रत्युत्तर आसवाई बिल्कुल विलंब लगे इनस्टाट प्रत्युत्तर आसो इनस्टाट प्रत्युत्तर आसो एवं आम देखते महाभारत से कलंकित अध्याय जो द्रौपदी की उल्लग्न कर दुशासन एवं तापर प्रभुंकर भगवान श्रीकृष्ण हेल्प आसी एक उच्चतर स्तर कथा जिते आस्पृहा बा समर्पण पूरा एकदम परिपूर्ण होते आसी साहाय्य मु भावुची आमे जो समय दि जाइथिला
ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ବହୁତ ଦିଗ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କରୁଣାମୟୀ ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ୍ର ଏକାଦଶତମ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ମାନବର ଆସ୍ପୃହା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ମା ପୁସ୍ତିକାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାନ ଯେଉଁ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। ଅସତ୍ୟ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଯଦି ଭାଗବତ କରୁଣା ଉପରେ ଆରୋପ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, କାରଣ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ ତେବେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥତାର କାରଣ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା ଇଆରି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ପୃହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଏଇ ସ୍ଥିର ଆଉ ଅବିରତ ଆସ୍ପୃହା ଏଇଠି ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଆସିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହେବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ହେବ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାର ଚାବି ରହିଛି ଆମ ଅନ୍ତରର ଭିତରେ। ପୁରୁଣା ଯୋଗର ଚାବି ଥିଲା ବାହାରେ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୋକ୍ଷ ଆଉ ନିର୍ବାଣ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏ ରୂପାନ୍ତର ହେବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଦିବତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରର ଯେଉଁ ଚାବି ସେ ବିଷୟରେ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ତରର ଚାବିଟି ହେଲା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ନ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଆମର ଉନ୍ମିଳନ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆସ୍ପୃହା କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅବିରତ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଏହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବିଷୟରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ୟାର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଏଇଟି ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଏଇଟି ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ଆମ ଯୋଗଟି ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସିପାରେ ନାହିଁ?
ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ଆମକୁ ଯୋଗ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର। ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠି ନେଚରର ଅବଦାନ ସବୁ, ଆମର କିଛି ତା ଦେହରେ ସହଯୋଗ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରି ହେଇନି, ପ୍ରକୃତି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ବିକାଶ ଘଟିବା ସହିତ ତା'ର ମନର ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ ଘଟି ସାରିଛି। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଛି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ମଣିଷ ଯେ ସହଯୋଗୀ ନହେଲେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ସଚେତନ ଭାବେ ସେ ଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମନ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏ ମନ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଆମ ପାଖରେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ୟା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ନା, ମଣିଷ ଯେମିତି ମନ ସକାଶେ ଗର୍ବବୋଧ କରୁଛି, ସେମିତି ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅତିମାନବ ଅବସ୍ଥା। ଏ ମଣିଷରୁ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମକୁ ହିଁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଅନେଇକି ରହିଥାଏ। ସକାଳେ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତାର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ଅନୁସାରେ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ତାର ମୁହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଢଳି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥାଏ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରକୃତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ସିଏ ଆମର ମା ପୁସ୍ତିକାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସତ୍ୟ, ଆଲୋକ, ଜ୍ୟୋତି, ଆକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ହେବ। ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଶେଷ। ଏଇ ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମେ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖ ହେବୁ, ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରଖିବୁ, ସିଏ ସେଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ରମଶଃ ବିକାଶଶୀଳ ହେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ଆକୁ ତା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବି କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଆବେଷ୍ଟନ କରି ଏହା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତମ ଅନ୍ତରଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଆସନ। ଏହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତି ଭିତରେ ତାହାକୁ ରୂପ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କୌଣସି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର ଚେତନା। ଏହା ଜଡ଼ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଶରୀରରେ ଏହାର ବାସ କରିବା ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ସେହି ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହା ଜଡ଼ ଜଗତ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର ଏକ ମହାନ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ମହାଦେଶର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯେତିକି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏଇ ଆବିଷ୍କାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ଏ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ରହିବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ସହନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାସ୍କୋ ଡି ଗାମା ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଜଳପୋତରେ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନେ 300 ମାନେ ସେ ବୋଧେ 400-500 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେତେବେଳେ ସେତିକି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ନଥିଲେ ସିଏ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଲହରୀ ପାର ହୋଇ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା ଆକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶ କିମ୍ବା ମହାଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା କ'ଣ କମ୍ ସହଜ କଥା ଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେତିକି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଦୁର୍ଗା ମାତା ଗଣେଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ରଖିକିରି ଭିତରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏବଂ କହିଲେ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ବିନା ଆଦେଶରେ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚଣ୍ଡା ଚାମୁଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ମହାଦେବ ଆସିଲା ପରେ ବି ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କହିଲେ, ମୋ ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେବୁ, ଦ୍ୱାର ଜଗିବୁ ଏବଂ କେତେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସେ ଦ୍ୱାର ଜଗିଲେ। ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନୋବଳ ସହକାରେ ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ସେମିତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋବଳ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଏତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନୋବଳ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ? ମା' କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଥା ସରଳତା, ନିଷ୍କପଟତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ସାହସିକତା, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ାକକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତା'ର ବିକାଶ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ଭାବେ ଭଲ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର ମାର୍ଗ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ, ସେଠି ସିଏ ନିଜେ ବୁଝିପାରେ ସାଧକ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆକୁ ଆହୁରି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ମୁଁ କରିବି, ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବି। ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ, ମାନବୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ମାନବୀୟ ସାହସିକତା ୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଖୋଜୁଥିଲି, ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଦେଖୁଥିଲି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ
से सब डाइभर्ट करी माँ श्री अरविंद आड़ माँ को मो केन्द्र रखी मु कहबी माँ भल पाइबी जदि केवल आपण को भल पाइबी जदि कार्य करी आपण निर्देश कार्य करी जदि सहनशीलता मो पे कई आनीदिए ताहले आपण ही आनीदेवे मते जदि कार्य करिवार शक्ति कोठु मिले आपण ही मोर उत्स ये सब भाव आसब सेतिक बेले जेतेबेले माँ माँ आपण को प्रथम प्राथमिक पर्याय आपणकर गुहारी शुणती आपणकर गुहारी मिश्रित होइकी थाए पार्थिव चेतना सहित एवं ताकू भी अनेक समय मंजूरी दियंती यही मंजूरी दबा अवस्था सी कौन करती जमती हुक लगे माछ को टणा जाए सेमती आपण को तांक आड़ को आकर्षित करती धीरे धीरे आपण माँ का जाल भितर को आसती जाल भितर को आसवा अर्थ धीरे धीरे आपण तांक प्रति माँ के प्रति आपणकर सद्भावना वृद्धि पाए आपणकर प्रेम और सौंदर्य ज्ञान वृद्धि पाए आपणकर चैत्य उन्मीलन घटे ये सब घटिला पर एभली गोटे अवस्था आसे जो अवस्था आपणकर भितरे गोटे भाव आसे जे माँ का छड़ा ए जीवन रे आउ कौन सी जिनसर किछि माने नहीं मु जदि ए जीवन बंची केवल माँ का पई एवं माँ जदि मो जीवन में नहांती मो जीवन माने किछि नहीं यही भाव जो समय आपण पाखे उद्रेक है तार अर्थ माँ आपण को तांकर बंशी कंटा द्वारा टाणिकी रखिले या पर मुहूर्त गोटे आसिक पहुँचे जो मुहूर्त आपणकर बाधा विघ्न सब आसो आपण को हुए तो यही पथर विच्युत करने गोटा गोटा बड़ बड़ समस्या आसी पहुँचब किंतु आपण चाहिए भी आउ विच्युत हो पारिनी कहीं ना माँ आपण को तांको कोल को टाणी नहीं सारे से अवस्था होची चैत्य उन्मीलनर अवस्था माँ कहते से अवस्था जड़े साधक जितेबाला जाई पहुँचे सेठू अति कम रे 30 वर्ष लगे ताकू साधनार उच्चतर अवस्था पहुँचापी यहाँ मिनिमम कहुई 30 वर्ष तेणु आमे बर्तमान निजको पर्यालोचना करिबा जे आमे को अवस्था अच्छे किंतु कथा है आमे केते गोटे जिनस निज जीवन रे माँ श्री अरविंद जहाँ कही किंबा आम जीवन रे माँ श्री अरविंद को ग्रहण कला परे किछि किछि एक्सपीरियंस समस्तंकर जो भाई अपा माने ये मार्गे अच्छा निश्चय निश्चय आसुथिबो जो मुहूर्त जो एक्सपीरियंस आसूची दैट इज ए कॉल लेटर जमती आपन चाकरी पाइबा गोटे कॉल लेटर आसिला आपन इमिडिएटली जाकि जॉइन करेंगे जदि जॉइन न कले से निर्दिष्ट तारीख रे निर्दिष्ट समय आपन चाकरी गला एठी सेमती आपन जीवन में जो भल अनुभूति आसिला माँ श्री अरविंद पाखरु ताकू इमिडिएटली जीवन में ग्रहण करंतु प्रयोग करंतु एवं से एक्सपीरियंस नहीं बंचा चेष्टा करंतु जाफल कौन हम ना से एक्सपीरियंस टी आपण पाखरु दूरे न जाए कारण माँ तो साहाय्य सहयोग सब बेले दियंती ग्रहणशीलता आम भितर बढ़ाती किंतु आमे जदि आम निजर झरका कबाट बंद कर रखिबा ताहले सूर्य किरण पशि पारिबो ना बाहर ठंडा पवन अम्लजान आम भितर को आसिबो तेणु आमको भी सही मात्रा प्रस्तुत होगा पड़ो आमर आलस्यता ठारू आमको दूरे रहा पड़ो मुझे आपको गोटे उदाहरण दूसरी आलस्यता आम 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 प्रारंभिक अवस्था यहाँ माने केमती थाए साधक मान भितर गोटे छोट उदाहरण दूसरी आपको बहुत हस लगे गोटे लोक ताकू समस्ते गाँव में अलसुआ बोली कहती सी जाइकरी ठाकुराणी मंदिर में प्रार्थना कला अधिया पड़ला एवं तार गुहारी रे प्रसन्न हो सेठी ठाकुराणी उभा हेले कहले मु तो ऊपर संतुष्ट होती तो प्रार्थना रे तू कौन मागुचु मागे सी कहला ये तो माने बहुत प्राचीन कथा सी कहला मोर मत समस्ते गाँव में अलसुआ बोली कहते आउ मोर बंचार किसी अवलंबन नहीं तेणु मत आप बचापी प्रतिदिन मु सका उठिला बेलू मो मुंड पाखे 10टी मुद्रा थी सेठू ठाकुराणी कहले यही कथा ठीक अच्छे मु तो देदेवी किंतु मोर गोटे शर्त सेठू अलसिया कहला कौन शर्त ना मु ते 10 टंका देवी
ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବୁ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଦେବୁ। ସେଠୁ ଅଳସୁଆ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ମା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ 10ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥାନ୍ତେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ କାଟି 9ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। ଏଇଭଳି ମନୋଭାବରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବଞ୍ଚୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ମା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ସେ ଚାକିରି ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିବାର ଯେକୌଣସି ଅବଲମ୍ବନ ହେଉ, ଆମେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉ। ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ମା ଶ୍ରୀରଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ଭୁଲି ଯାଉ। ଏଇଠି ହେଲେ ଆକୁ କୁହାଯିବନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉର୍ଦ୍ଧାହିତ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଆମେ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ଡିଜାୟାର, ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଶାଇ ଦେଉ। ଦୁଇଟା ଯାକ କିନ୍ତୁ ପୃଥକ୍ ଜିନିଷ। ଡିଜାୟାରଟା ଆମର ସେଣ୍ଟର ହେଲା ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ଡିଜାୟାର ଆସେ। ମୁଁ ତ କହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମା କିଛି କିଛି ଡିଜାୟାରକୁ ବି ପୂରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟାଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେବ। ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବିନି ଯେ ମା ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସ୍ଥିର କରିବା। ଆମର ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତାରି ଆଣିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଲା, ଆମେ ତ ଭଗବାନ ତ ଏ ସଂସାରରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଜଣକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ତମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାହିଁକି ଭାଗିଦାର ହେଇଛ? ନା ଭାଗିଦାର ହେବୁନି, ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର? ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଚାକିରି ବାକିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଗୋରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା ଆଚ୍ଛା କାଲି ଯଦି ତୁମକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିନେବ। ସିଏ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଛ? ନା ଆମକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁନି, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଠିକ୍ରେ। ନା କାଲି ଯଦି ତୁମକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବ। ସିଏ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲିଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଛକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥାଏ, କିଛି ଲୋକ ସେତେବେଳେ କଲିକତା ଯାଉଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ନାଁ, ମୁଁ ସେ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ନେଉନି, ଅମକ ନେତା ମୁର୍ଦାବାଦ ତାଙ୍କ ନାଁଟି କହୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯେଉଁ ନାଁଟି ନେଉଛ ସେ କିଏ? ନା ସିଏ କିଏ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତୁମେ ଏ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଦେଉଛ? ନା ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି, ଆମ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛୁ। ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସ୍ଥିର ହେଲେ ଆପଣ ମାର୍ଗ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଆମର ମା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଏତେ ବ୍ୟାପକ, ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ତା ଭିତରକୁ ପଶୁଥିବା, ଜୀବନଟା ଲାଗୁଥିବ ଆମେ ହୁଏତ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ସେ ତଥାପି ସେଇ କୂଳରେ ଅଛୁ। ଆହୁରି ମାନେ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା କେତେ ଯେ ମାନେ ତା ଭିତରେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଆସ୍ପୃହା ଜୀବନରେ ଆମକୁ କେତେଗୁଡ଼ା ବାଟ ବତେଇ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠୁଛୁ,
माँ जन को जन साधु को तू सकाळु उठिकी अति कम्रे 10 मिनिट टी मो कथा मन पका शोला बेलू को मो कथा टी 10 मिनिट मन पका एवं प्रति कार्य कला बेले प्रति चिंतार प्रति कार्य तू भावे जे मो पाखे पाखे मोर उपस्थिति को अनुभव करे एवं गोटे बाणी आमर भी कहुई जहाँ तुम करुच सबु बेले भाव माँ मो आड़ को चाहिकी रही एवं प्रकृत में माँ सबु बेले आम पाखे था यही भावटी जदि आम रखू आम खाद्य ग्रहण कलु माँ को टे स्मरण करूँ आम जेकोसी कार्य कलु ऑफिस कार्य कलु माँ को टे स्मरण करूँ ता भितर गोटे तीव्रता आसो ता भितर गोटे प्यूरिफिकेशन आसो ता भितर गोटे हुए तो गोटे जदि समस्या आसिक पहुँचो ताकू जीवाई ताकू अतिक्रम करने आम पाखे बाट खोल आमर जेते आस्पृहार बेग बा तीव्रता जिते बढ़ आम भगवान उत्तर पाइबू प्रत्युत्तर पाइबू भगवान प्रत्युत्तर कौन भगवान तो गोटे प्रत्युत्तर सी है आम करुणा करुणार बारी आम करुणार बारी आम सब बेले रही आमर आस्पृहार बेग आमर तीव्रता आमर स्वच्छता आमर पवित्रता उपर से निर्भर करे जेतिकी जेतिकी आम माँ आड़ को खोली पारू सेतिकी सेतिकी मात्रा करुणार स्पर्श पाइबू मुझे कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची धन्यवाद। आमर विषय रही ह्यूमन एस्पिरेशन एंड डिवाइन रेस्पॉन्स मु जो मैंने कहीगले कथार एक सारांश उपस्थापित करुच्ची ह्यूमन एस्पिरेशन हूँ मनीष डाकिब आ भगवान शुणवे प्रथम कथा हूँ भगवान शुणती कि नहीं ये सन्देह मनीष डाकिबा केमती हुए ता भी सन्देह माँ समस्ते से बही पढ़े प्रेयर्स एंड मेडिटेशन ध्यान और प्रार्थना श्रीअरविंद को से बही संपर्क में एक प्रश्न कराला कि माँ तो स्वयं भगवती से क्या प्रार्थना कर चमत्कार प्रार्थना सब लिखाई श्रीअरविंद तार उत्तर देले दीज प्रेयर्स आर रिटन in an identification with the earth consciousness. The mother in the lower nature praying to the mother in the higher nature, the mother herself carrying the sadhana of earth consciousness, praying to herself above from whom the forces of transformation come. पृथ्वी सांगे निजको एक करिकी माँ प्रार्थना करछंदी एवं काहाको प्रार्थना करछंदी निजको प्रार्थना करछंदी यही है ह्यूमन एस्पिरेशन रहस्य निजुक ही प्रार्थना कर समग्र पृथ्वी रे गोटे बड़ विषय को उत्तर देवा पड़ो जे आस्पृहा एस्पिरेशन और डिजायर इच्छा कामना तफात कौन कोटा को एस्पिरेशन कह कोटा को तुम डिजायर बिल कामना बिल कह बहुत स्पष्ट भाव में कहुई बाबाजी महाराज बही लिखि आत्मार इच्छा हूँ एस्पिरेशन प्राणर इच्छा हूँ कामना ये हूँ तफात आत्मा जहाँ चाहूँगी कौन आत्मा चाहूँगी श्रीअरविंद बढ़िया कहते जे आरंभरू सृष्टि आरंभरू जितेबले मनुष्य देखा देछि मनुष्य देखा देवार एक चमत्कार कहानी अच्छी जड़ भितर जितेबाला चेतना निजक उपस्थापित प्रथम चेतना जो उपस्थापित से एक सुदूर लक्ष्य नहीं उपस्थापित कर जड़ भितर चेतनार प्रकाश एक विशाल प्रतिज्ञा प्रतिश्रुति कौन से विशाल प्रतिश्रुति दिने सर्वोच्च चेतना चेतना जस्ट आरंभ हो सर्वोच्च चेतना ये प्रकाश हम यही प्रतिश्रुति नहीं जड़ भितर चेतना प्रथम प्रारंभ भाव में आरंभ देखा से चेतना उद्भिद देखा मिनराल से देखाई जड़ वस्तु देखाई धातु मान देखाई तापर उद्भिद मान देखाई यही चेतना एक सचेत रूप नहीं आत्मचेतन रूप नहीं सेल्फ कॉन्शियस रूप नहीं जिते मनीष आसी देखा मनीष भितर कन्फ्यूजन सब रही द्वंद्व रही धीरे 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 प्रकाश हो चली
ଏବଂ या परे से परम प्रतिश्रुति आड़क आम जाऊँ ये मनीषर आस्पृहार एक चमत्कार अवस्था देखा केत गुड़े जिनस मनीष चाहूँगी हजार थर मना कले से चाहूँगी ताकू दि जाऊ नहीं कि से चाहूँगी कौना कौ बर्ते चाहूँगी कौन कौन से चाहूँगी ना मनीष भितर आकांक्षा रही पूर्णता निमंते सत्य निमंते आनंद निमंते अमृतत्व निमंते जो पचरा युधिष्ठिर जाक्ष संवाद में मनीष मरी जाऊँगी आखि आगे देखुचु मनीष मरुचे तथापि कहीं बंचा चाहूँगी अहन्नाहानि भूतानि गच्छन्ति जमालयम शेषा जीवंत मिच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम आउ आश्चर्य विषय कौन थाईपे एमती कहीं हो तार उत्तर से देखाएनि कि उत्तर अच्छी उत्तर है मनीष भितर किसी एक वस्तु रही हूँ अमृतत्व वस्तु आत्मा रही आत्मा हूँ अमर तेणु से अमरत्व चाहूँ आत्मा रे सत्य निहित रही आत्मा आत्मा रे पूर्णतार बीज निहित रही आत्मा हूँ स्वयंभू आनंदमय ये सब जिनस मनीष चाहूँगी केमती कौन चाहूँ से आखि आगे जहाँ देखुची ता हाथ में जो रकम इन्स्ट्रुमेंट सब रही वेपन सब रही अस्त्र शस्त्र रही उपाय सब रही भीतर देखिए से उपलब्धि करने की चेष्टा करमती मु बंचिकी रुँची सबुदिन यहीटा बाहर को देखा बंचिक रहा भाया मनीष केमती बंचिकी रुहे हुए तो किसी कीर्ति कर जाए लोक स्टाच्यू तो लोक कर दिखती स्टाच्यूटा रहे बोली स्टाच्यू भी रहे नहीं केते वर्ष पर स्टाच्यू भांगी जाए आउ किए विरोध लोक आसते भांगी दे पारती स्टाच्यू तो रहे नहीं किंबा मनीष किसी गोटे कीर्ति करके जाए गोटे साम्राज्य करके जाए तापर जड़े राजा थिले सबू जय कर गोटे विराट मूर्ति निजर करते से मूर्ति पुणी भाविले सबदिन रही चमत्कार करते धीरे 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 मरुभूमि से राज्य परिणत है मूर्ति नष्ट होगा मनीष आउ एक साधारण उपाय ग्रहण करे जहाँ भीतर देकी बंची रही से उपाय हूँ निजर पिला पुओ झील सब हुए पुओ झील भितर देकरी मनीष बंची रहा चाहे बापा बंची रहा चाहे ये बंची रहार गोटे उपाय असल वस्तु आसे जितेबले आत्मा पर्सनिफाइड हुए जो जो वस्तु से खोजुची जो वस्तु तार दरकार ये पूर्णता सत्य आनंद अमृतत्व तार ऊपर से पुष अनुभव कर एक गति अनुभव कर ये केवल संभवपर हो पार जितेबले निज भितर थिबा महान पूर्णता को से उपलब्धि कर बाह्य जीवन में प्रकाश हो पार ता अजाणतार ये सब जिनस चिंता को आवृत करके रखी आउ एक कथा यार फल कौन हो चाहूँगी तो ठीक आम गोटे जिनस जाणनेलु बुझिलु जी जी चाहूँगी मदर इन द लोअर नेचर मदर इन द हायर नेचर जी चाहूँगी तले आस्पृहा करछि से ही भगवती जे उत्तर दौरान से होती भगवती तेणु आम मन साहस आसीगला कारण आमे माने आमे जो मान सब अच्छु आम भितर जेतेबेले महतर जीवन पर इच्छा प्रकाश पाउछि जेतेबेले किछि भल वस्तु शुभ वस्तु पर आकांक्षा प्रकाश पाउछि ता होछि आम भितर मांकर उपस्थितिर प्रतीक चिन्ह सेटा जे एई भाव में जेतेबेले संगति करने इच्छा होछि कुटिलता मते भल लागु नहीं अशांति भल लागु नहीं असंगति भल लागु नहीं मु चाहूँगी महान वस्तु पूर्णता किसी आड़ को जावाई गोटे पाद नापी चाहूँगी ये टेंडेन्सी मो भीतर होची मांकर उपस्थिति जदि ये उपस्थिति ये घटना कहीं घटुची कारण जो विराट जणी जो विषय में कथार्थ जो विराट यात्रा महान यात्रा फ्रॉम मैटर टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस परम सत्य चेतना को जो यात्रा ये यात्रा रे ये हूँ बाटर पड़ी वस्तु सब चिन्ह सब माइलखुंड सब ये मनुष्य ये अवस्था देखिए आसी आउ एक कथा आम साहस पाईगला जे माँ ही आम भर आस्पृहा कर आड़ को जावाक आम भर
प्रेरणा जोगाउछन्ति या फल गोटे बढ़िया काम हुए से काम हूँ सावित्री गोटे लाइन अच्छी हर एस्पिरेशन कॉल्ड हाई डेस्टिनी डाउन विभिन्न जगत सब रही आम सब्जेक्ट हूँ ह्यूमन एस्पिरेशन डिवाइन रेस्पॉन्स विभिन्न सबु स्तर रही से स्तर में कौन हुए आमर जदि व्हाट एवर मैन कन्स्टांटली विल्स एट द एंड ही मस्ट बी एबल टू डू इट श्रीमंद लिखा जे जदि जड़े चाह रही परमानेंट जिनस चाह रही अंतरात्मा चाह रही ये सब वस्तु ताहले उच्चतर लोकर सत्य यही जड़ जगत में अवतरण कर माने कौन ता माने हूँ विभिन्न संसार रही विभिन्न लोक रही प्रत्येक लोकर एक ऐश्वर्यमय दीप्ति रही मनुष्यर आस्पृहा फल उच्चतर लोकर दीप्ति ऐश्वर्य सत्य जहाँ हूँ अमृतत्व जहाँ हूँ पूर्णता जहाँ हूँ आनंद जहाँ हूँ संगति से धीरे धीरे मनुष्य भितर आसो एठी आमे मनुष्य को इंडिविजुअल हिसाब से न देखिक अल्प समय मनुष्य को जाति हिसाब से देखला जाति हिसाब से देखले कौन हम आम देखू किसी एक चेतना मनुष्य को व्यवहार करुच्ची व्यवहार करी तारी माध्यम देकरी गोटे एडवेंचर हो इट इज रियली एन एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस गोटे चेतनार जय यात्रा मनुष्य भितर से प्रकाश पाँच एवं कौन फलाफल हम ना फलाफल यह हम जे महतर लोकर सत्य शांति आनंद पूर्णता अमृतत्व ये लोकरे प्रकाशित हम कारण कौन सी गोटे मनुष्य आस्पृहा नुहे मनुष्य जातिर आस्पृहा मनुष्य जातिर आस्पृहा तो संपूर्ण परिपूर्ण हम आम देखीचु जे पुराण रे शास्त्र आम सब देखू पढ़ीचु जे देवता माने कौन करती भगवान को जाई प्रार्थना करती ता पूर्वर कौन करा जाए ना पृथ्वी जितेबले तामसिकता जड़ता अज्ञानता अंधकार भार बहुत बेसी हो जाए बर्तमान बहुत बेसी बहुत बेसी हो जाए सेतेबले पृथ्वी गोटे छोट बाछुरी रूप में जाकरी भगवान के आगे कांदे ब्रह्मा के आगे कांद कौन ना आपण सृष्टि करते अवस्था बहुत सीरीयस खबर रक्षा कर ब्रह्मा देवता को लेकिन भगवान प्रार्थना करती एंड दैट इज ए डिसेंट ऑफ द अवतार यही घटना घटुची जे पृथ्वी भितर सिंबलिक भाव में लिखाई कारण गाई होती आलोकर चिन्ह बाछुरी हिसाब से जाकरी भगवान को आकुल निवेदन कर भूलवानी प्रेयर्स एंड मेडिटेशन रे ध्यान प्रार्थना रे माँ गोटे उक्ति पृथ्वी प्रति कि चमत्कार से उक्ति हूँ जे दुखिनी पृथ्वी व्यस्त होना तो सांगे मुझे आम जिते स्ट्रगल करुँ असुविधार पड़चु अज्ञानतार रोचु अंधकार रोचु जंत्रणा रोचु से जंत्रणा सांगे सांगे गोटे चमत्कार उपस्थिति सांगे रही जे आम आखिर लुह पोछि दौर यही हूँ आमर उद्देश्य यही हूँ आमर साहस से कहते किंतु यही जो डाकवाटा ये डाकवाटा समष्टिगत हवा दरकार कलेक्टिविटी रे हवा दरकार मनुष्यर दुख कष्टर एक बहुत बड़ कारण हूँ मनुष्य निजर अज्ञानता को भल पाए से निजर अंधकार अवस्था को पसंद करे सत्य अवस्था अपेक्षा पसंद करे से सकाशे ऊर्ध्वर उत्तर मध्य परिपूर्ण हुए नहीं जितेबले आम विभिन्न अवस्था भितर दे जाए चेतनार विभिन्न स्तर भितर दे जाए आम संपूर्ण भाव में आम निजर स्थिति प्रति बीतस्पृह हो बीतस्पृह अर्थ हो भल लगनी ये अवस्था जमा भल लगनी सेतेबले ऊर्ध्व जगत निश्चय एक रेस्पन्स जहाँ श्रीरंद स्पष्ट कहते मुझे कथा दूची ये तुमको जहाँ चिठी लिखिं तुमको मुझे कथा दूची जे वर्तमान भगवान कर इंटेंशन किसी गोटे घटेबा किसी एक घटेबा जे यथा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत से कहते जे अवस्था खराब हो जाइए एते खराब होते खराब हम सेते ऊर्ध्वर एक चाप पड़ो एक अवतरण घटो पिला माने पिला को कौन करती माँ छाड़ दियंती निजे बस कम कर कंढे से कंढे पिला खेलुं जितेबले
आउ बहुत बेसी खेल हो जाए आउ तार माँ दरकार पड़े से कंडी फोपाड़ी देकर पार्टी करे माँ सांगे सांगे कौन करता पाक पड़े आसे गोटे खोला छात मझिरे पुओ गोटे पिलाटे बसिकी कौन काम करुँची पार्टी करुँची माँ तार काम कर शुणुनी पुओ जदि तार से पिला जदि जीव दाढ़ आड़ को काट छातर माँ जो दौड़ी आसा पुणी मझे छाड़द भगवान आमको कहते नामे भक्त प्रणस्थिति नष्ट होगा देवेनि भगवान ठीक ठीक भाव में हस्तक्षेप करेंगे आम तरफ जो विषय बहुत बेसी दरकार ताहूँ आमर आस्पृहार तीव्रता आम सतरे कौन चाहूँ आम जदि सचेतन हबू आम भितर एक महान चेतना रही चैत्य पुरुष रही अंतरात्मा रही जहाँ प्रकृत में आउ एक जिनस जीवन में चाहूँ सचेतन हबू खाली सचेतन हबू नहीं आम ता सागे सचेतन संपर्क रखू ताहले आम अंतरात्मा भितर थी आस्पृहा आमर बाह्य जीवन को प्रभावित कर स्पर्श करने आरंभ कर आम देखू जे स्वाभाविक रूपे आमर आस्पृहा जाऊँगी आमर इच्छा प्रार्थना से आम हृदय अविराम भाव में उठा आरंभ कर भगवान को श्री चरण आड़ को जाऊँगी चमत्कार भाव में श्रीमंदर लिखिं इफ अर्थ कॉल्स एंड द सुप्रीम आंसर्स द आवर कैन इवन नाउ फॉर दैट इमेंस एंड ग्लोरियस ट्रांसफॉर्मेशन यदि पृथ्वी डाके आ भगवान उत्तर दियंती भगवान पचारे कहे मु ठीक उत्तर दूसरी तुम शुणी पारुन तुम डाक डाकला भाया डाक देख मुझे उत्तर दूसरी ना ना से कहते यही मुहूर्त ही परिवर्तन साध्य हम आम चाहूँ कि आमर आमर जो नेचर हो ह्यूमैनिटी हैज फॉल इन लव विथ हर इग्नोरेंस अंधकार सांगे अज्ञानता सांगे भल पाई बसी से मोह आसक्ति मुक्ति हवा आम चाहूँ कि जो आम सचेतन हबू कि आम कौन चाहूँ आम जीवन में कौन दरकार एवं यही सचेतनता आम जीवन को प्लावित कर आम देखू जे पृथ्वी मनुष्य चाहूँगी भगवान उत्तर दौरान माँ को पचराई माँ आम डाकिले तुम शुण कि आम तो तुमको डाकू तुम शुण कि ना शुणनी किए गोटे शक्ति शुणे तुम शुणनी माँ कहले मुझ सीधा सीधा शुणे माँ निज आड़ क्वेश्चन कले मु उत्तर देले तू शुणु कि आमको आम कान ताब्दा हो जाम से शुणा जाऊनी आप उत्तर देले कि आम डाकिले तुम शुणुच कि ना ना माँ कहले मुझे सब शुणे खाली शुणेनी तुम सांगे मु रही एवं सांगे रही ना केवल आम डाकवाटा के तीव्रतर हम शुद्धतर हम महतर हम आम डाकवाटा जमी आम जीवन को संपूर्ण भाव में आच्छादित कर रखिब ता भीतर पेनिट्रेट कर भीतर पशिज आम भितर एवं आम भितर जो डाकबार उत्साह प्रकाशित हम से माँ जत्न नियंती आम यही आस्था रखा यही विश्वास रखा यही इच्छा आम भीतर रहा यही भिजन आम आखिक देखादेव जमती एक दिन आसब आम समग्र सत्ता मन प्राण शरीर अंतरात्मा आस्पिरेसन आस्पुरा सांगे एक हो भगवान को उत्तर इमिडिएटली सांगे सांगे मिल आम जीवन दुख कष्ट दूर हो आमर जीवन बंचिला भाया बंची हम श्री माँ श्री अरविंद समस्त माँ श्रीअरविंदर अनुगामी भाई भाई मैंने आज आमर ये जो लीगल यूनिट्र वार्षिक उत्सव पालन करूँ से आम माँ श्रीअरविंद पाखे अशेष अशेष कृतज्ञता जनाऊँ एवं सर्वोपरि ये जो कार्यक्रम आम करूँ से आमर जो भाई मैंने एपाई अक्लांत परिश्रम कर सहयोग एवं उत्साह आमको पुणी ये कार्यक्रम करने प्रेरणा देती से मामू को मुझे कृतज्ञता जनइबी एवं द्वितीय बाबुल भाई जी कि सबुबले आम सहित रही आमको उत्साह प्रदान कर सारी आज जो सभार मुख्य वक्ता सरोजकांत भाई बा सरोजकांत मिश्र जी कि समय देकी आमको तांकर वक्तव्य उपस्थापन करिसेंती एवं आमको माँ श्रीअरविंद लेखा उपरे आलोकपात करने सहित से जोग विषय रे अनेक किछि तथ्य देइछंती तापरे आम प्रकाश भाई आमर जी प्रकाश चंद्र महापात्र से आमको तांकर मूल्यवान समय देकी सबु वर्ष से आम सहित रही था कृतज्ञता जनाऊँ अक्षय भाई जे कि आम कन्वेनर से
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଘରେ ରହିବି, ସେଥିରେ ମାତୃଭବନର ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରୁଥିବୁ ବା ମାଆଙ୍କ ବାଣୀଟିକି ଶୁଣିପାରୁଥିବୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବା ମହାଶୂନ୍ୟଙ୍କର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆମର ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ସର୍ବୋପରି ମହାଶୂନ୍ୟଙ୍କ ଏମିତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ ପଛେ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକିନି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁ, ମହାଶୂନ୍ୟ ଆମ ଭିତରୁ ଯେଭଳି ଆମେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେଇପାରିବୁ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।